जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। पार्ट 2 है ये। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था। पार्ट 2 ये है कि देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ देयर आर द वेरी मच इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, क्योंकि योगा गिव्स अस द स्ट्रेंथ, योगा गिव्स अस द स्ट्रेंथ टू बियर। इंसान से बर्दाश्त कर सकता है द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। इट हैज़ वेरी मच इम्पोर्टेंस। एक तो ये हमारी बॉडी को स्ट्रेस, एक तो हमारी बॉडी को स्ट्रेस करता है, दूसरा ये है कि हमारी बॉडी को क्या करता है, इट गिव्स द ब्यूटीफुल शेप, इट गिव्स द मेंटल बैलेंस, इट गिव्स द स्पिरिचुअल बैलेंस को योगा हैज़ वेरी मच इम्पोर्टेंस। इससे पहले हमने पढ़े थे 6 पॉइंट्स दैट्स कॉल्ड द मतलब रिलैक्सेशन ऑफ रिलैक्सेशन provides relaxation by what yoga provides the relaxation to our body। जो हम पढ़ रहे हैं that's called the 6th point, that's called keeps the correct posture of our body। अगर हम बात करेंगे why yoga is important, yoga is important। क्यों importance क्यों है कि नंबर 6, इससे पहले हमने 5 पढ़े थे। नंबर 6 that's called कि योगा there are, if we can see, there are different kind of deformities। एक तो disease होते हैं, दूसरा deformities means any kind of disability or something else। We found different people with a different kind of disabilities, different kind of disabilities, different kind of deformity। We cannot provide a life, we cannot have a life to enjoy। Usually हम क्या कर सकते हैं, there are simple tasks। If we perform different kind of asanas, जो कि elements of yoga regularly basis, जैसे कि सवागर आसना है, मयूर आसना है, चक्रासन है, भुजासन है, धनासन है। These yoga elements, these yoga asanas not cure only our mental and physical but also it accurates, it affects all the physical moves। अगर हम कंटिन्यूअली इन आसनास को फॉलो अप करेंगे, अगर हम कंटिन्यूअली इन आसनास को फॉलो अप करेंगे, इन आसनास को कंटिन्यू हम देख लेंगे, इन आसनास को रेगुलरली हम मतलब के इस्तेमाल करेंगे, देन एक तो ये फिजिकली स्ट्रेंथ हमें देगा। नंबर 2 ये क्या कर सकता है, नंबर 2 इट आल्सो एक्यूरेट्स एंड मेक्स इफेक्टिव आवर बॉडी पोस्चर्स, आवर बॉडी स्ट्रेंथ। If we see there are different kind of poses, जैसे lordosis, kyphosis, the different kind of disorder deformities regarding to our backbone। या तो मतलब ये शोल्डर्स में प्रॉब्लम होती है, या यहाँ पे होती है प्रॉब्लम, मतलब शोल्डर्स हैं, अराउंड द शोल्डर्स, अराउंड द नेक, या तो इट्स अबाउट द ग्रिडल, अबाउट द शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट, या हिप में भी प्रॉब्लम हो सकती है। As we did not make accurate postures during our walking, या sitting में हम अच्छा पोस्चर नहीं बना सकते हैं, या walking में अच्छा पोस्चर नहीं बना सकते। That's why it causes when we become habitual of these मतलब uneven postures, तो इससे क्या हो जाता है, it becomes a disorder। Disorder जब ये बनता है, when it becomes a disorder या deformity, it takes a note of deformity, फिर ये deformity बन जाती है। Deformity की वजह से क्या we becomes habitual as well as। But if we make regular use of these asanas, if we perform regularly these asanas, then our body parts, then our physical activity strength, then our body is strength, then it becomes accurate, and it becomes effective, and it becomes quick। All Number 7, yoga can be performed easily। अगर हम देखेंगे in nowadays, if we have to make exercise in a gym, we need different kind of machine। If we have to play any activity, if we have to play any game, we need the equipment related to the game। Similarly, yoga is an activity which we needs nothing, neither we needs any money, neither we needs any proper place। We can perform it at any time, at anywhere, at everywhere, कहीं पे भी, कैसे भी। और important ये है, it has very it has मतलब very easily to learn, very easily to execute। These exercises can be done in shorter durations, in longer duration, however we can prepare it।
नंबर 7, अगर हम 8 के बाद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। योगा की अगर हम बात करेंगे, एक तो अगर हम योगा रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, योगा तो में जो आसनाज होते हैं by which we can perform the regular exercise, but it has also make such kind of efforts that gives us the spiritual development, जो हमें क्या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट देते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल जो होता है, मतलब did not pay attention towards his God, towards his creator. He forgets about these things. But yoga is an element. The yoga has the different elements. Yoga के different elements है that attains us, that increase, that shows us the path of Paramatma. As yoga जो कहा जाता है, it is the unification of Atma with Paramatma. It is the oneness of man with the God. को simply there are different kind of elements, जैसे कि सिद्ध आसना है जिससे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाती है हमें, या इट गिव्स द मेडिटेशन पावर, जिसे मेडिटेट बोलते हैं, मेडिटेशन पावर को ही इंक्रीज करता है। प्राणायामा जब हम करते हैं, एक तो इट इंक्रीजेस आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड नंबर 2 इट आल्सो गिव्स द पीस टू आवर माइंड। नंबर 9, इट इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे, एक तो हम जो डिफरेंट आसनास करते हैं, that prevents the different kind of injuries. जब हम रेगुलरली किसी एक्सरसाइज को करते हैं को इट इंक्रीजेस आवर फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर बॉडी। जब हम प्रॉपरली फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी में, हमारे मूवमेंट्स में इंक्रीज हो जाती है, इससे क्या हो जाए, वी कैन प्रिवेंट द डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट्स इंजरीज, एंड इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर मसल, जैसे कि चक्रासन, धनासन, हल आसन। It increases the muscles become strong, muscles become flexible, so that we can perform any kind of activity, any kind of asana very easily. Number 10, that's called the improves health. क्या है improves health? अगर हम बात करेंगे, योगा इज ए मतलब एक्टिविटी, योगा इज एन इम्पोर्टेंट, योगा इज एन एक्टिविटी, योगा है that maintains and improves our health. जब हम रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, if we did not involve, we did not get the time to participate in the ground, if we did not get the time to go to the gym, if we did not get the time to go in our fields for work, we can regularly maintain the different kind of asanas, 10 to 15 asanas, and perform them regularly. एक तो ये इम्प्रूव करेगा हमारी हालत को, दूसरा it beautifies, it makes beautiful our looks, and it makes beautiful and effective our all movements, and it improves all the body systems, different kind of body, जैसे कि respiratory system, digestive system, circulatory system, nervous system. All these things can improve if we perform regularly, continually the different kind of exercise. Number 11, that's called enhances moral values and ethical. Nowadays अगर हम देखेंगे कि people are indulged in that kind of activities where we can say the immoral values, unethical values, but immoral or unethical values has been increased day by day in our society. अगर हम the yoga elements को इस्तेमाल करेंगे, अगर हम different kind of yoga elements को इस्तेमाल करें, एक तो हमें फिजिकली वो क्लीन और प्यूरिफाई करते हैं, दूसरा ये होता है कि इट आल्सो मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ योगा एंड एथिकल वैल्यूज कैन बी अचीव। वो कैसे, व्हेन वी प्रैक्टिस द यमा या नयामा, या नंबर थर्ड अपरिग्रह। अगर हम यमा को बोलेंगे, यमा मीन्स द पावर, या नयामा या ट्रूथफुलनेस है। अगर हम अपरिग्रह को देखेंगे, अपरिग्रह इज एन एलिमेंट ऑफ योगा। अपरिग्रह मीन्स, अगर हम देखेंगे, अपरिग्रह एक एलिमेंट है। अपरिग्रह मीन्स नॉन स्टीलिंग, किसी चीज को नॉन स्टीलिंग करना, मतलब चोरी करना अगर हम देखें। बट अपरिग्रह इज नॉट एन, अपरिग्रह इतना ही लिमिटेड नहीं है कि हम कोई चीज किसी के घर से या किसी से चुराएंगे, नहीं। अपरिग्रह डिफाइंड in itself
अपारिगा ये भी मानता है कि अपारिगा इज एन एलिमेंट इन विच इफ वी हैव द एक्सेस मनी, हमारे एक्सपेंडिचर से ज्यादा अगर हमारे पास पैसा है, इफ वी डिड नॉट यूज देम फॉर द नीडी पीपल्स, दैट्स आल्सो नोन एज अपारिगा। उसको भी अपारिगा कहते हैं। अगर हमारे पास एक्सेस मनी है, इफ वी हैव द एक्सेस, मतलब एक्सेस मनी है, एक्सेस कोई भी चीज एक्सेस है जो हमें ऑर्डर में नहीं, मतलब जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इफ वी डिड नॉट यूज एंड यूटिलाइज दैट पोटेंशियल इन ऑर्डर टू सर्व आवर सोसाइटी, और नीडी पीपल्स के बाद मतलब जिनकी जरूरत होगी उनको हम अगर ये नहीं देखेंगे, दैट इज ऑल्सो अपारिगा। उसको भी कहता है कि वो भी अपारिगा है। नॉन स्टीलिंग है, नॉन स्टीलिंग फ्रॉम अस, नॉन स्टीलिंग फ्रॉम दीज पुअर पीपल्स, इन गरीब लोगों का खाना, और नॉन स्टीलिंग फ्रॉम आवर, नॉन स्टीलिंग टू आवर गॉड, कुदरत से भी छीन लेना। अगर हम देखेंगे संतुष्टि, अगर हम देखेंगे एक एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड द संतुष्ट। संतुष्ट मीन सेटिस्फिकेशन, सिंपली आप याद रखिए, सेटिस्फिकेशन। इफ गॉड हैज गिवन अस ईच एंड एवरीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गॉड ने हमें हेल्दी बनाया है और हम इफ वी आर नॉट संतुष्ट, इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं, दैट्स आल्सो नोन एज, मतलब उसको भी हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड नॉन स्टीलिंग, दैट इज कॉल्ड एन अपारिगा। वो भी अपारिगा, वो भी नॉन स्टीलिंग। अल्लाह ताला ने हमें, या परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, गो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द, ये तो इथिकल वैल्यू, ये तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ने, फिर हम में से स्पिरिचुअलिटी नहीं है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो गए। मीन्स अगर हम अपारिग्रह को फॉलो करेंगे, संतुष्टि को, साधना को, फॉलो द पाथ ऑफ अल्लाह, साधना मीन्स टू फॉलो द पाथ ऑफ अल्लाह, मतलब अपने क्रिएटर, अपने उसकी बात को फॉलो करना। अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम क्या कर पा रहे हैं, फिर वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होती है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन्हीं चीजों से होती है। अपारिग्रह, जब हम अपारिग्रह को, एलिमेंट को फॉलो करेंगे, संतुष्ट को, समाधि को, धरना को मतलब we can live and we can live a happy life। इससे क्या सोशल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज डेवलप हो जाते हैं।